Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hey Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Hare Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Dham Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Dham Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Lalita Visakha Jaya Radhe Shyam 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Hari Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Srila Gurudev গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীরা হরি হরি বলিতে নয়নে বাবে নিরা Hari Hari Bole Tena Yana Babenira গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীরা হরি হরি বলিতে নয়নে বাবে নিরা Garanga Bole Tebe Pulaka Sarira Hari Hari Bole Tena Yana Babenira আর কবি নিতাই চাঁদে করুণা করিবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে Sansara Vasana Mara Kabe
তুচ্ছাবে বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মান কবে হেরিব শ্রী বৃন্দাবন বিষয় চরিয়া কবে শুধাবে মানা কবে হেরাব শ্রী বৃন্দাবন রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি প্রার্থনা কর কবে হে বুঝাবাসে যুগল পিরাতি রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি কবে বুঝাবাসে যুগল পিরাতি রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশা প্রার্থনা কর সদা নরোত্তম দাস রূপ রঘুনাথ পদে রমর আশা প্রার্থনা কর সদা নরোত্তম দাস রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশা প্রার্থনা কর সদা নরোত্তম দাস রূপ রঘুনাথ পদে রমর আশা প্রার্থনা কর নরোত্তম দাস গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলকা শরীরা হরি হরি বলিতে নয়নে বাবে নিরা গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলকা শরীরা হরি হরি বলিতে নয়নে বাবে নিরা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नदिया बिहारी जय गौरनिताय नदिया बिहारी जय गौरनिताय जय नदिया बिहारी जय गौरनिताय जय बिहारी जय गौरनिताय जय सच्चिसुत जय जय गौरनिताय जय सच्चिसुत जय गौरनिताय जय जय सच्चिसुत जय निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 श्रीला गुरुदेव गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयने भवे नीर। श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रार्थना करते हुए ये लालसामयी प्रार्थना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि गौरांग बलित हवे पुलक शरीर, कि कब वो दिन आएगा जब गौरांग का नाम उच्चारण करते करते मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा। हरि हरि बलिते नयने भवे नीर। और जब मैं हरि हरि उच्चारण करूंगा तो उस समय मेरे दोनों नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होंगी। आर कबे निताई चांदेर करुणा हईवे। और वो दिन कब आएगा जब श्री नित्यानंद प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे। संसार वासना मोरो कबे तुच्छ हवे। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से मेरी जो संसार भोग की कामनाएं हैं, जिसके कारण मैं इस भौतिक संसार में बंधा हुआ हूँ, दुख और कष्ट भोग कर रहा हूँ, वो संसार वासना, संसार भोग की कामना, ये कब मेरे लिए तुच्छ प्रतीत होगा। क्योंकि भौतिक संसार में लोग इस भौतिक भोग की कामना के कारण
यहाँ तरह तरह के दुख सहन करने के लिए प्रस्तुत है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि यदि हम वास्तविक नित्य सुख, नित्य आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस संसार भोग की कामनाओं को त्यागना पड़ेगा, इसको तुच्छ समझना पड़ेगा। दिव्य आनंद के सामने ये संसार भोग का आनंद अति तुच्छ है, अति नीच है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा की आवश्यकता है। इस प्रकार की भावना लाने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है। तो जब गुरु की कृपा होगी तब नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है और संसार भोग की कामनाएं तुच्छ प्रतीत होती है। तब हम दिव्य आनंद प्राप्त करने की कामना कर सकेंगे। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वो दिन कब आएगा कि संसार भोग की कामनाएं मेरे लिए तुच्छ प्रतीत होगी। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, और वो दिन कब आएगा जब ये विषय भोग की कामनाएं मैं त्याग कर दूंगा। ये मन में ये विषय भोग की जो कामनाएं हैं वही हमें आध्यात्मिक मार्ग में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न करती है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कब ये विषय भोग की कामनाओं को त्याग करके मेरा मन शुद्ध होगा। कबे हम हेरब श्री वृंदावन। इस विषय भोग की कामनाओं के कारण यद्यपि हम वृंदावन आते हैं, यहाँ तक कि वृंदावन में निवास भी करते हैं, किंतु वास्तविक दिव्य वृंदावन का हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जब मेरे मन से ये विषय भोग की कामनाएं दूर हो जाएगी और मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, तब मैं इस दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन करने के लिए समर्थ होऊंगा। रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, कबे हम बुझा बसे जुगल प्रीति। और हम कब श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मैं व्याकुल होकर प्रार्थना करूंगा। कब उनकी कृपा से श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी कृपा से हम राधा कृष्ण के प्रेम को समझने के लिए समर्थ होंगे। क्योंकि श्री रूप गोस्वामी ये रसाचार्य है, राधा कृष्ण के प्रेम रस के आचार्य हैं, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये श्रीमती राधा रानी के एकांत अनुगत भक्त हैं। तो ये दोनों ही जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम लीला तत्व को। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में हम प्रार्थना करते हुए श्री राधा और कृष्ण के प्रेम तत्व को हम समझने के लिए समर्थ होंगे। वो दिन कब आएगा। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में सदा मेरी आशा बनी रहे, मेरा मन
उनके चरणों में लगा रहे, जिससे कि मैं राधा कृष्ण के प्रेम तत्व को समझने के लिए समर्थ होऊंगा। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय श्री नित्यानंद प्रभु की, जय श्री षड गोस्वामी वृंद की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आज परम पुरुष भगवान कृष्ण से अभिन्न परम पावन पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। और इस अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारणों के संबंध में सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम उनकी जन्म लीला और बाल्य लीला के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुता हैल सई बलराम हैल निताय। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्री सचिनंदन गौर हरि के रूप में अवतरित हुए और श्री बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो भगवान श्री कृष्ण किस लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, उनके अवतरण का कारण क्या है? हम लोग जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में अवतरित नहीं होते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हर द्वापर में अवतरित नहीं होते हैं। जिस द्वापर में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, उसके बाद जो कलयुग आता है, उस कलयुग में वही भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो भगवान कृष्ण के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण का उद्देश्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण क्यों अवतरित हुए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का ये दो उद्देश्य हैं, एक बहिरंग उद्देश्य, एक दूसरा अंतरंग उद्देश्य। और बहिरंग उद्देश्य या बाह्य कारण, श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का बाह्य कारण ये भी चार प्रकार के हैं। चार प्रकार बाह्य कारण है। और उनके अवतरण का जो आंतरिक कारण है ये भी तीन प्रकार के। तो हम सर्वप्रथम बाह्य कारण के संबंध में चर्चा करेंगे, उसके पश्चात अंतरंग कारण के संबंध में चर्चा करेंगे। तो बाह्य कारण जो है भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने का, तो ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कहते हैं कि
कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए विशेष रूप से ब्रजभूमि में, तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों को लेकर उन्होंने ब्रजभूमि में लीलाएं की। दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इस 4 रसों के भक्त के साथ भगवान कृष्ण ने यहाँ प्रेम रस आस्वादन किया। और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार ब्रज प्रेम का आस्वादन करते हुए जब अपने धाम में चले गए, तो वहाँ जाकर वो सोच रहे हैं गोलोक वृंदावन धाम में, तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि हमने चिरकाल से इस ब्रज भक्ति को प्रदान नहीं किया है। जो प्रेम भक्ति, ब्रज भक्ति, इसको हमने प्रदान नहीं किया है, क्योंकि सारा संसार मुझे भगवान मानकर मेरी पूजा करता है, मेरी विधि पूर्वक भक्ति करता है। तो इस प्रकार ये लोग मुझे भगवान मानते हैं, और भगवान मानकर मेरी जो भक्ति करते हैं वो विधि भक्ति है। विधि पूर्वक शास्त्रों के नियमों के अनुसार ये भक्ति करते हैं लोग। और इस प्रकार मेरे प्रति जो भगवत ज्ञान है, तो इससे क्या होता है, ऐश्वर्य ज्ञानते प्रेम शिथिल हो जाता है। जब मेरे प्रति ऐश्वर्य ज्ञान रहता है, भगवत ज्ञान रहता है, तो इससे प्रेम शिथिल हो जाता है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीत, ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित। तो सारा जगत मेरे प्रति ऐश्वर्य ज्ञान करता है, मैं भगवान हूँ, इसलिए वो लोग जो भक्ति करते हैं उसमें प्रेम नहीं रहता है, उसमें अधिकतर सम्मान का भाव या भय का भाव रहता है कि मैं भगवान। तो ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस ऐश्वर्य ज्ञान के, मेरे प्रति ऐश्वर्य ज्ञान के कारण भक्तों का प्रेम शिथिल हो जाता है, वो धीमा पड़ जाता है, वो प्रेम परिस्फुट नहीं होता है। और जो लोग इस प्रकार मेरे प्रति विधि भक्ति करते हैं, नीति नियमों के अनुसार, शास्त्र नियमों के अनुसार मेरी भक्ति करते हैं, ये लोग वैकुंठ जाते हैं, वैकुंठ को प्राप्त हो सकते हैं, किंतु गोलोक वृंदावन प्राप्त नहीं हो सकते, जो मेरा निजी धाम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि अनर्पित चरिन चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम। तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि बहुकाल से अनर्पित चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, तो बहुकाल से हमने ये प्रेम, ब्रज प्रेम को प्रदान नहीं किया है। इसलिए इस कलियुग के लोगों के प्रति करुणा प्रदर्शन करने के लिए, कृपा प्रदर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसं स्वभक्ति श्रियम। तो मैं इस कलयुग में अवतरित होकर ब्रज का जो उन्नत उज्ज्वल रस, प्रेम रस, मैं इसको कलयुग के लोगों को प्रदान करूंगा।
यद्यपि कलयुग के लोगों की कोई योग्यता नहीं है ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम रस को प्राप्त होने के लिए, क्योंकि कलयुग के लोग हर तरह से मंदभाग्य है, उनकी कोई योग्यता नहीं है। किंतु भगवान कृष्ण की ये विशेष कृपा है कलयुग के लोगों के ऊपर, इसलिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर इस प्रेम रस स्वयं उन्होंने आस्वादन किया और कलयुग के लोगों को प्रदान किया। तो ये भगवान कृष्ण की श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में बहुत बड़ी कृपा है कलयुग के लोगों के ऊपर। इसलिए इस कलयुग के लोग बहुत भाग्यशाली हैं इस दृष्टि से, और इस कलयुग को धन्य कली कहा गया है। ये कलयुग धन्य हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने का जो मुख्य कारण है, बहिरंग कारण, बाह्य कारण, ये है कलयुग के लोगों को जो अधम पतित हैं उनको सर्वश्रेष्ठ प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो ये प्रेम भक्ति प्रदान ये एक कारण रहा। और दूसरा कारण है कि युग धर्म प्रवर्तन। तो युग धर्म, हर युग का एक एक युग धर्म होता है। जिस प्रकार कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतयांग यजतो मखई, कृत युग सत्य युग में युग धर्म था भगवान विष्णु का ध्यान। तो उस समय लोग हजारों वर्ष तक ध्यान करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, क्योंकि उस समय उनकी आयु 1,00,000 वर्ष थी सत्य युग में। और त्रेता युग में लोगों की आयु 10,000 वर्ष को कम हो गई, क्योंकि कुछ अधर्म आ गया। इसलिए त्रेता युग में लोग यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से भगवान की आराधना करते थे। साधारण लोग तो बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते थे, इसलिए राजा महाराज लोग ये यज्ञ अनुष्ठान करते थे और सारी प्रजा उसमें अंश ग्रहण करती थी और सभी यज्ञ का फल प्राप्त होते थे। तो त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ अनुष्ठान। और द्वापर में और अधर्म आ गया, 50 भाग अधर्म 50 भाग धर्म रह गया। तो द्वापर युग का युग धर्म हुआ परिचर्या, भगवान की अर्चना, मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना, ये द्वापर युग का युग धर्म हुआ। किंतु कलयुग में ये 25 भाग धर्म 75 भाग अधर्म, और जो 25 भाग धर्म रह गया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अधर्म बढ़ता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कलयुग में जब धर्म शून्य हो जाएगा, केवल अधर्म ही अधर्म, वो कली का अंत उस समय आ जाएगा। इसलिए कलयुग में लोग न तो मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं, यद्यपि हम कर रहे हैं मंदिर में पूजा अर्चना, किंतु जिस प्रकार विधि पूर्वक होना चाहिए और जिस प्रकार शुद्ध द्रव्य भगवान को अर्पित करना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए कलयुग के लिए केवल भगवान का नाम संकीर्तन यही युग धर्म रखा गया है। कलो तद हरि कीर्तनात्, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा। तो कलयुग में ये जो हरि नाम ये युग धर्म है, तो भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए इस युग धर्म का प्रचार करने के लिए। यद्यपि ये युग धर्म का प्रचार भगवान का कोई भी अवतार कर सकते हैं, और भगवान कृष्ण ये भी सोच रहे हैं
युग धर्म प्रवर्तन हय अंश हित, मेरे अंश के द्वारा युग धर्म का प्रवर्तन हो सकता है, किंतु आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी अवतार ये ब्रज प्रेम को प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस ब्रज प्रेम को प्रदान करने के साथ साथ युग धर्म का भी प्रवर्तन करूंगा, क्योंकि युग धर्म प्रवर्तन का समय उपस्थित हो गया था भगवान के आविर्भाव के समय। तो ये एक दूसरा कारण रहा युग धर्म प्रवर्तन, और दूसरा है ब्रज प्रेम प्रदान। तीसरा कारण है कि भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि हमने ये उपदेश दिया कि मेरे प्रति समर्पित होने के लिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मांग एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे प्रति समर्पित हो जा, सारे धर्मों को त्याग कर, तथाकथित धर्मों को त्याग कर मेरे चरणों में समर्पित हो जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो भगवान कृष्ण ने तो ये उपदेश दिया, किंतु कैसे भगवान के चरणों में समर्पण होना है इसको कौन सिखाएगा? तो भगवान सोच रहे हैं कि कली के लोग ये कैसे सीखेंगे मेरे प्रति कैसे समर्पित होना है, इसलिए मुझे जाकर ये लोगों को सिखाना है कैसे मेरे प्रति समर्पित होना है। तो इसलिए भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि आपनी करीमु भक्ति भाव अंगीकारे, आपनी आचरी भक्ति शिखामु सवारे। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा और एक बार, और मैं स्वयं जाकर भक्ति आचरण करूंगा और स्वयं भक्ति का आचरण करके कलयुग के लोगों को शिक्षा दूंगा। क्योंकि आपने ना कैले धर्म सिखाने न जाए। यदि कोई उपदेश देता है और स्वयं आचरण नहीं करता है, जैसे कलयुग में होता है, लोग दूसरों को उपदेश दे देते हैं, ये करो ये करो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, किंतु स्वयं आचरण नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि यदि स्वयं कोई आचरण नहीं करता है और धर्म का उपदेश देता है तो लोग उसके आदेश को या उपदेश को पालन नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं आपने ना कैले धर्म सिखा न जाने। स्वयं आचरण नहीं करने पर दूसरों को हम धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए स्वयं को आचरण करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि स्वयं को भक्ति का आचरण करने के लिए मुझे भक्त बनना पड़ेगा। तो इसलिए यदि मुझे भक्त बनना पड़ेगा भक्ति सिखाने के लिए, तो यही कारण है कि भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं भक्त के रूप में अवतरित हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ये भक्ति शिक्षा देने के लिए। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान का महान भक्त के रूप में जानते हैं, किंतु वो स्वयं भगवान है ये नहीं जानते। तो भगवान श्री कृष्ण इस उद्देश्य से आए भक्त के रूप में, भक्ति कलयुग के लोगों को सिखाने के लिए। तो ये तीन कारण हुए कि भक्ति की शिक्षा देना, युग धर्म का प्रवर्तन करना और ब्रज प्रेम प्रदान करना, ये तीन बाह्य कारण हुए। और चौथा कारण
कहते हैं कि भक्त की इच्छा, भक्त की इच्छा से भगवान अवतरित होते हैं। तो जब श्री अद्वैत आचार्य जो भगवान के भक्तावतार हैं, पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। तो कृष्ण 5 रूपों में अपने को विभाजित करते हैं, विस्तार करते हैं। स्वयं भक्त रूप में अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और भक्त स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु, और भक्त अवतार श्री अद्वैताचार्य। भक्त शक्ति श्री अद्वैत प्रभु एवं भक्त आख्या श्रीवास पंडित। तो ये पंचतत्व जो है ये भगवान के रूप है। तो अद्वैत आचार्य जो भक्त अवतार, भक्त के रूप में ये यद्यपि भगवान है, ईश्वर है, अवतरित हुए, तो वे जो प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले, तो उस समय अद्वैत आचार्य ने देखा संसार में कि लोग क्या करते हैं, विषय भोग में लगे हुए हैं। कोई पुण्य कर्म करके विषय भोग करता है, कोई पाप कर्म करके विषय भोग करता है, किंतु सभी का उद्देश्य है विषय भोग करना, और इसमें भक्ति का कोई गंध भी नहीं है। तो ये देखकर अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हुए कि सारा संसार विषय भोग में लगा हुआ है, यद्यपि वे लोग व्रत अनुष्ठान आदि करते हैं, किंतु उसका उद्देश्य है विषय भोग करना। किसी में भक्ति की गंध नहीं है, इसलिए बहुत दुखी हुए अद्वैताचार्य। और उन्होंने सोचा कि कलयुग के लोग भक्ति विहीन होकर इस सब नरक में जा रहे हैं, तो इनको कैसे उद्धार किया जाए नरक से। ये सोचकर श्री अद्वैत आचार्य ने ये निश्चय किया कि जब तक भगवान स्वयं अवतरित नहीं होंगे और इस कलयुग में भक्ति का प्रचार स्वयं आचरण करके कलयुग के लोगों को नहीं सिखाएंगे, तब तक ये कलयुग के लोगों का उद्धार नहीं हो पाएगा। और भगवान कृष्ण का अवतरण करने के लिए हमें उनकी उपासना करनी पड़ेगी। हम कृष्ण की उपासना करके, पूजा करके उनको कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए उनको इस कलयुग में अवतरित कराएंगे। ये अद्वैत आचार्य प्रभु का हृदय, लोगों के दुख, लोगों की अवस्था को देखकर कैसे उनको उद्धार करेंगे, इसलिए अद्वैत आचार्य ने भगवान को पुकारा। और कैसे पुकारा? उनकी पूजा करते हुए, तुलसी, मंजरी और गंगा जल से। तो गंगा जल भगवान के चरणों में डालकर और उसमें तुलसी मंजरी रखकर अद्वैत आचार्य ने भगवान की प्रार्थना की। और अद्वैत आचार्य जब हुंकार करने लगे, जोर जोर से भगवान को पुकारने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अद्वैत आचार्य का यह हुंकार, वो गर्जन समग्र भौतिक मंडल को भेद कर, ब्रह्मांड को भेद कर जाकर गोलोक वृंदावन में ये हुंकार पहुंचा। और भगवान श्री कृष्ण ने जब ये
अद्वैत आचार्य के हुंकार को सुना तो वहाँ स्थिर होकर नहीं रह पाए और उन्होंने सोचा अब मुझे धरती पर अवतरित होने का समय आ गया है। हम भक्त रूप में अवतरित होकर कलयुग के लोगों को हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ब्रज प्रेम देकर उनका उद्धार करेंगे। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कलयुग के लोगों के लिए। और ये कृपा तभी संभव हुई अद्वैत आचार्य के हुंकार के कारण। अद्वैत आचार्य इसका कारण बने। तो इस प्रकार भक्त की इच्छा, अद्वैत आचार्य जो स्वयं ईश्वर हैं किंतु भक्त का अभिनय कर रहे हैं, उनकी इच्छा के कारण भगवान अवतरित हुए। तो ये 5 बाह्य कारण हो गए, 4 बाह्य कारण श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का। अब हम अंतरंग कारण जो भगवान कृष्ण की निजी इच्छा है, ये बाह्य कारण क्यों है? ये दूसरों के लिए है, लोगों के उद्धार के लिए भगवान ने इच्छा की अवतरित होने के लिए। किंतु जो अंतरंग कारण है वो भगवान कृष्ण की निजी इच्छा है, अपने लिए भगवान अवतरित हो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण क्यों अवतरित हो रहे हैं? अपने लिए, पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, जब ब्रज में भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे, उनके जो 4 प्रकार की लीला हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 4 प्रकार के रसों में माधुर्य रस की लीला सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि माधुर्य रस में जो गोपियां हैं, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है, तो श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रति अत्यधिक आकृष्ट है, उनके प्रेम के प्रति आकृष्ट है। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि कृष्ण सोच रहे हैं कि कृष्ण कही आमी है रसेर निदान। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं तो रस का कारण हूं, क्योंकि रसो वैसह, भगवान कृष्ण को रसो वैसह कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही रस है, उन्हीं से सारे रसों की उत्पत्ति होती है। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं रस का निदान हूं, रस का स्रोत हूं, किंतु और पूर्णानंदमय चिन्मय पूर्ण तत्व, मैं पूर्ण आनंदमय हूं और पूर्ण तत्व भी हूं। तो यदि चिदानंदमय में पूर्ण तत्व हूं, पूर्ण आनंदमय हूं, सारे रस का स्रोत हूं, किंतु ये सब होते हुए भी राधिकार प्रेम आमे कराए उन्मत्त, श्रीमती राधा रानी का प्रेम ये मुझे उन्मत्त करा रहा है। मैं सभी रसों का निदान हूँ, आश्रय हूँ, मुझसे ही सभी आनंद को प्राप्त होते हैं, मैं रस का स्रोत हूँ। किंतु श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है ये मुझे आनंद प्रदान कर रहा है, मुझे उन्मत्त कर रहा है। ना जानी राधार प्रेमे आछे कतम बल,
इसलिए मैं समझ नहीं सकता। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम में कितना बल है। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर रहा है। मैं सारे संसार को उन्मत्त करा रहा हूँ, सारे आनंद के स्रोत हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त करा रहा है। तो मैं ये नहीं समझ सकता कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम के कितने बल है। जे बले हमारे करे सर्वदा विह्वल, और श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे सदा सर्वदा विह्वल कर रहा है। निज प्रेमास्मदे मोर है जो आनंद, तहा है ते कोटि गुण राधा प्रेमास्वाद। तो अपने प्रेम में मुझे जो आनंद प्राप्त होता है कि श्रीमती राधा रानी मुझे प्रेम कर रही है, मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है, तो उससे अधिक आनंद श्रीमती राधा रानी प्राप्त कर रही है मेरे प्रति प्रेम करके। कोटि गुण राधा प्रेमास्वादा। तो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, ये मुझसे कोटि गुण आनंद श्रीमती राधा रानी अनुभव कर रही है। इसलिए श्रीमती राधा रानी जो राधा रानी का जो प्रेम है, ये सर्वोत्कृष्ट माना गया है। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उद्धार करते हैं, उद्धृत करते हैं श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की उक्ति को कि श्रीराधया प्रणय महिमा कीदृशोवा नएवा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने का जो 3 कारण हैं भगवान कृष्ण के, तो ये कारण है श्रीमती राधा रानी के प्रणय या प्रेम की महिमा क्या है, ये कृष्ण जानना चाहते हैं। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशोवा नएवा, स्वाद्य जैनाद्भुत मधुरिमा कीदृशोवा मदीय। तो ये एक कारण हुआ कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा किस प्रकार है, इसको जानने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित हुए राधा रानी के भाव में और उनकी अंगकांति को लेकर। क्योंकि भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि राधा रानी के प्रेम का मैं तो विषय हूँ, क्योंकि राधा रानी मुझसे प्रेम करती है, मैं प्रेम का विषय हुआ, और प्रेम का आश्रय है श्रीमती राधा रानी स्वयं। तो जो विषय है प्रेम का विषय, वो आश्रय का जो सुख है, प्रेम से जो सुख आश्रय प्राप्त होता है, श्रीमती राधा रानी प्राप्त होती है। कृष्ण प्रेम से श्रीमती राधा रानी जो सुख प्राप्त होती है, जो आनंद प्राप्त होती है, उसको कृष्ण कैसे जानेंगे? श्रीमती राधा रानी ही जान सकती है, क्योंकि वो प्रेम का आश्रय है और कृष्ण प्रेम के विषय है। कृष्ण के प्रति प्रेम किया जाता है, और जो प्रेम करता है वो प्रेम का आश्रय है। जिसके प्रति प्रेम किया जाता है वो प्रेम का विषय बन जाता है। तो जो विषय है प्रेम का, वो जान नहीं सकता आश्रय का कैसा सुख उसको प्राप्त हो रहा है। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रति जो प्रेम करती है, वही उसका आनंद आस्वादन कर सकती है। कृष्ण उस आनंद को आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कृष्ण के मन में एक लोभ उत्पन्न हुआ कि श्रीमती राधा रानी प्रेम का आश्रय होकर जो प्रेम का आस्वादन करती है मेरे प्रति, मैं कैसे उस प्रेम का आस्वादन करूं। ये लोभ उत्पन्न हुआ कृष्ण के मन में। और भगवान कृष्ण सोचते हैं कि जब तक मैं राधा रानी का भाव ग्रहण नहीं करूंगा,
राधा रानी का रूप अंगकांति ग्रहण नहीं करूंगा तब तक इस प्रेम को मैं आस्वादन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कृष्ण को श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव को लेकर अवतरित होना पड़ा। राधा रानी की अंगकांति तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांग। राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी है और भगवान कृष्ण उनके भाव, प्रेम भाव को समझने के लिए वो तप्त कांचन गौरांग बनकर आए। और राधा रानी के भाव में जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण से विरह का अनुभव करती थी सदा सर्वदा, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। ये श्रीमती राधा रानी का भाव कि मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ पर हैं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मेरे प्राणनाथ कृष्ण को प्राप्त हूं। तो ये इसी भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु ग्रहण करके, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में ग्रहण करके वे भी कहाँ कृष्ण, कहाँ मेरे प्राणनाथ कहाँ है, इस प्रकार वो रो रहे थे राधा रानी के भाव में। तो ये एक कारण है राधा रानी के प्रेम भाव को समझने के लिए, प्रेम की महिमा को समझने के लिए। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशोवा नैवा, स्वाद्य जैनाद्भुत मधुरिमा कीदृशोवा मदीय। और दूसरा कारण है जो अंतरंग कारण, तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी मेरे प्रति आकृष्ट है। किस लिए आकृष्ट है? मेरे माधुर्य को देखकर। मेरे माधुर्य का आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती है। तो मेरे माधुर्य कैसा है मैं स्वयं कैसे आस्वादन कर सकता हूँ? कोई व्यक्ति सुंदर है तो अपने सौंदर्य को दूसरे लोग आस्वादन कर सकते हैं, व्यक्ति अपना सौंदर्य स्वयं आस्वादन नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सुंदर है, श्रीमती राधा रानी उनके सौंदर्य का आस्वादन करती है, किंतु कृष्ण कैसे अपने सौंदर्य का आस्वादन कर सकेंगे? तो एक बार भगवान कृष्ण ने अपने रूप को देखा। जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो मणिमय स्तंभ पर अपने रूप का प्रतिफलन देखा। तो जब भगवान कृष्ण ने अपने रूप को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये रूप किसका है। अपने रूप का प्रतिफलन देख रहे हैं किंतु सोच रहे हैं कि ये ऐसा अपूर्व सौंदर्य किसका है। अपरिकलित पूर्व का चमत्कारकारी। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि ये चमत्कार रूप जो है ये अपरिकलित पूर्व, पहले मैंने कभी देखा नहीं है, कभी सोचा नहीं है कि मुझसे कोई अधिक सुंदर हो सकता है, क्योंकि कृष्ण असमर्थ है, उनसे उनके समान कोई नहीं हो सकता या उनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण के सौंदर्य के समान किसका सौंदर्य नहीं हो सकता या उससे बढ़कर नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण स्वयं अपने रूप को देखकर मणिमय स्तंभ पर सोच रहे हैं कि ये रूप किसका है। पहले तो मैंने ऐसा सौंदर्य कभी नहीं देखा है। तो अपरिकलित पूर्व का चमत्कारकारी स्फुरति मम गरियान ऐसा सौंदर्य पूरा। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि ये जो सौंदर्य है, ये जो रूप है, ऐसा लगता है कि मेरे सौंदर्य से ये सौंदर्य और अधिक मुझे दृष्टिगत हो रहा है। इस रूप का सौंदर्य मेरे से अधिक है। स्फुरति मम गरियान ऐसा सौंदर्य पूरा।
तो जब भगवान कृष्ण इस प्रकार सोचने लगते हैं कि ये सौंदर्य तो मेरे सौंदर्य से अधिक है, इसलिए मैं आकृष्ट हो रहा हूँ इस रूप के प्रति, पुनः सोच रहे हैं कि मैं तो असमर्थ हूँ, अर्थात मेरी कोई समता नहीं कर सकता या मुझसे बढ़कर नहीं हो सकता, तो मेरे समान या मुझसे बढ़कर कोई सौंदर्यशाली नहीं हो सकता, तो फिर ये रूप क्या मेरा है? अयं अहम अपि हंत लुब्ध चेता प्रेक्षय लुब्ध चेता। तो भगवान सोच रहे हैं कि जब मुझसे कोई बढ़कर सौंदर्यशाली नहीं हो सकता, क्या ये रूप मेरा है? तो ये सोचकर भगवान कहते हैं प्रेक्षयं लुब्ध चेता। भगवान कृष्ण के मन में एक लोभ उत्पन्न हो गया, दूसरा लोभ, कि मैं इस सौंदर्य का आस्वादन करना चाहता हूं। तो मैं कैसे इस सौंदर्य का आस्वादन करना चाहूंगा? न सर्वसंग उपभोक्तुं कामये राधिके। और यदि मुझे इस सौंदर्य का आस्वादन करना है तो मैं अपने सौंदर्य का आस्वादन कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मुझे राधिका के रूप कांति ग्रहण करके अवतरित होना पड़ेगा। राधिका के भाव और अंग कांति को लेकर अवतरित होना पड़ेगा, तब जाके मैं इस सौंदर्य का आस्वादन कर सकता हूँ। तो ये दूसरा कारण, भगवान कृष्ण अपने सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन करने के लिए उनमें लोभ उत्पन्न हो गए। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ये सोच रहे हैं कि हमारा दर्शन राधा सुखे आ गया। तीसरा कारण है श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण का दर्शन करती है, जो सुख का आस्वादन करती है, आनंद का आस्वादन करती है, तो ये भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम में मैं जो सुख प्राप्त होता हूँ उससे राधा रानी का प्रेम का सुख अधिक है। तो आमा इते राधा पाए जे जातीय सुख ताहा आस्वादिते आमी सदाई उन्मुख। तो श्रीमती राधा रानी मेरा दर्शन करके जो सुख प्राप्त होती है, तो उसी सुख का मैं आस्वादन करना चाहता हूं। इसलिए मुझे राधा रानी का उस सुख का आस्वादन करने के लिए मुझे राधा रानी के रूप में या उनकी भाव कांति को लेकर अवतरित होना पड़ेगा। तो राधा रानी के सुख कारण मैं विषय हूँ राधा रानी के आनंद का, इसलिए मैं आस्वादन नहीं कर सकता जब तक मैं आश्रय नहीं बनूं। तो राधा रानी के भाव में उनकी अंग कांति ग्रहण करते हुए मैं इस सुख का आस्वादन केवल कर सकता हूँ। तो ये तीसरा कारण हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इन तीन लोभों को पूर्ण करने के लिए, प्राप्त होने के लिए, और जो चार बहिरंग कारण हैं, इसके लिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, श्रीमती राधा रानी के भावों को लेकर, उनकी अंग कांति को लेकर। तब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने के लिए भगवान कृष्ण ने निश्चय कर लिया। और जब भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने से पहले
तो भगवान कृष्ण ने इसकी व्यवस्था की। तो भगवान कृष्ण ने पहले उनके जो गुरुजन होंगे इस लीला में, चैतन्य लीला में, पहले उनको भेज दिया अवतरित होने के लिए। जैसे जगन्नाथ मिश्र, सची माता, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, चंद्रशेखर आचार्य, हरिदास ठाकुर और ये जितने सब गुरुजन स्थानीय व्यक्ति हैं, ये सभी आविर्भूत हो गए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का समय जब आया तो भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम वो प्रवेश कर गए जगन्नाथ मिश्र के शरीर में, क्योंकि भगवान का अवतार ये साधारण बालक जैसा नहीं होता है। तो भगवान जिस प्रकार भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के मन में प्रवेश कर गए थे आविर्भूत होने से पहले, आविवेश अंशभागे न मन आनक दुंदुभे। तो भगवान कृष्ण जब आविर्भूत हुए तो अनक दुंदुभी वसुदेव के मन में आविष्ट हो गए थे। तो उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए, आविर्भूत होने से पहले ये जगन्नाथ मिश्र के मन में आविष्ट हो गए। और वो कब आविष्ट हुए? उनके आविर्भाव से 13 महीने पहले, माघ महीने में। चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन पूर्णिमा में अवतरित हुए, तो माघ महीने में वो प्रविष्ट हुए जगन्नाथ मिश्र के मन में। और जगन्नाथ मिश्र के मन से वो सची माता के मन में प्रवेश कर गए, आविष्ट हुए। तो इस प्रकार जब से चैतन्य महाप्रभु आविष्ट हुए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले जगन्नाथ मिश्र और सची माता की 8 कन्याएं उत्पन्न हुई थी और इन कन्याओं की मृत्यु जन्म लेने के पश्चात हो गई थी। 8 कन्याओं की मृत्यु। इसलिए जगन्नाथ मिश्र और सची माता बहुत दुखी थे कि एक एक करके 8 कन्याओं की जन्म के बाद मृत्यु, ये उनके लिए बहुत असहनीय था। इसलिए बहुत दुखी थे और भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। और भगवान विष्णु की आराधना करने के कारण उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था विश्वरूप, जो चैतन्य महाप्रभु के पहले आविर्भूत हुए थे। और ये विश्वरूप बलराम जी के अवतार थे। और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार विश्वरूप बाद में उन्होंने संन्यास लिया और पंढरपुर में उन्होंने शरीर की रक्षा की और नित्यानंद प्रभु के शरीर में प्रविष्ट हो गए। तो विश्वरूप जो बलराम के अवतार थे और नित्यानंद प्रभु भी बलराम के अवतार हैं, ये मिल गए। तो इसके पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार सची माता के गर्भ में रहे, उनके मन में प्रवेश करके उनके गर्भ में आ गए। तो उस समय सची माता और जगन्नाथ मिश्र ये सब, जगन्नाथ मिश्र तो स्वप्न में देख रहे थे।
जब चैतन्य महाप्रभु प्रविष्ट हुए उनके मन में, जगन्नाथ मिश्र स्वप्न में देख रहे थे कि कोई ज्योतिर्मय पुरुष आकर उनके मन में प्रवेश कर गया और उनके मन से सची माता के मन में वो स्थानांतरित हो गए। तो जगन्नाथ मिश्र सची माता से कह रहे हैं कि मैंने एक स्वप्न देखा। जब चैतन्य महाप्रभु सची माता के घर में आ गए तो जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि मैंने एक स्वप्न देखा और उसमें हमने देखा कि एक ज्योतिर्मय पुरुष हमारे मन में आविष्ट होकर तुम्हारे मन में प्रविष्ट हुए। तो सची माता जगन्नाथ मिश्र से कह रही है कि मैं भी देख रही हूँ कि आकाश में सब दिव्य पुरुषगण ये हाथ जोड़कर मेरी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सची माता के गर्भ में, इसलिए देवतागण स्तुति कर रहे थे आकाश से। जिस प्रकार भगवान कृष्ण जब देवकी के माता देवकी के गर्भ में थे तो देवतागण आए थे कंस की बंदीशाला में भगवान की स्तुति करने के लिए। तो सची माता जगन्नाथ मिश्र से कह रही थी कि दिव्य पुरुषगण आकाश में खड़े होकर मेरी हाथ जोड़कर मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो दोनों सची माता और जगन्नाथ मिश्र इस प्रकार का स्वप्न और सची माता का दर्शन, दिव्य पुरुषों का दर्शन, इसके बारे में सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न थे और दोनों ने ये सोच लिया था कि कोई दिव्य पुरुष सची माता के गर्भ से आविर्भूत होने वाले हैं। उनको पहले से ये ज्ञान हो गया था। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु सची माता के गर्भ में थे तो और एक चमत्कार जगन्नाथ मिश्र ने देखा। तो जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि उनका घर धन धान्य से भर रहा है अपने आप, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र जहाँ जाते हैं रास्ते में जो कोई भी देखता है बिना मांगे उनको सारे द्रव्य ला कर देते हैं लोग। जगन्नाथ मिश्र चावल, दाल, घी, तरह तरह के द्रव्य ला कर देते हैं बिना मांगे, और सभी लोग जगन्नाथ मिश्र का सम्मान करते थे। जब से चैतन्य महाप्रभु आए माता सची के घर में तो इस प्रकार सभी लोग जगन्नाथ मिश्र का सम्मान करते थे और उनका घर धन धान्य से भर जाता था। तो जगन्नाथ मिश्र आश्चर्यचकित हुए कि पहले तो ऐसा नहीं होता था। ये चैतन्य महाप्रभु जब गर्भ में आए तब ऐसा होने लगा। तो जगन्नाथ मिश्र समझ गए कि कोई महापुरुष आ रहे हैं, उनके घर में जन्म लेने वाले। तो इस प्रकार 12 महीने व्यतीत हो गए, जबकि साधारण रूप से बच्चे माता के घर में 10 महीने तक रहते हैं, किंतु 12 महीने व्यतीत हो गए, सची माता का कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तो जगन्नाथ मिश्र चिंतित थे कि 12 महीने हो गए अभी तक कोई संतान जन्म का उपक्रम नहीं दिख रहा है, तो क्या हुआ। इस प्रकार चिंतित होकर जगन्नाथ मिश्र ने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया, और नीलांबर चक्रवर्ती जो जगन्नाथ मिश्र के ससुर थे, सची माता के पिताजी, और वे ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे।
तो नीलांबर चक्रवर्ती ने गणना करके जगन्नाथ मिश्र से कहा कि इसी महीने एक आपका एक बहुत सुंदर और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होने वाला है। तो जगन्नाथ मिश्र प्रसन्न हो गए कि चलो 13 महीने में अब संतान का जन्म का समय आया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 13 महीने तक माता के गर्भ में रहे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का समय आया तो उस समय इस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, आज जैसे फाल्गुन पूर्णिमा है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो फाल्गुन पूर्णिमा की वंदना करते हैं कि ये फाल्गुन पूर्णिमा ये बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि सर्व सद्गुण पूर्णांगं वंदे फाल्गुन पूर्णिमा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वंदना करते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की, क्योंकि ये फाल्गुन पूर्णिमा सारे सद्गुणों से संपन्न थी। सारे ग्रह, लग्न, नक्षत्र सब उच्च स्थान पर थे, क्योंकि भगवान का आविर्भाव होने वाला था। जस्यं श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये आए थे भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, और केवल नाम का नहीं, नाम प्रेम का प्रचार करने के लिए, नाम के माध्यम से कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। यही चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा वरदान है। अन्य कलयुग में नाम का प्रचार होता है, क्योंकि कलयुग का युग धर्म है ना हरिनाम संकीर्तन, किंतु अन्य कलयुग में नाम कीर्तन के साथ साथ कोई प्रेम को प्राप्त नहीं होता है। किंतु इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो नाम प्रदान किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने सारे जीवों को उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया नाम के माध्यम से। तो इसलिए इस कलयुग में ये हरिनाम प्रेम पूरित हरिनाम है, कृष्ण प्रेम पूरित हरिनाम है। चैतन्य महाप्रभु जब इस हरिनाम का कीर्तन करते थे, स्वयं कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर नृत्य करते थे, उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती थी। और जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से ये हरिनाम का श्रवण करता था, वो भी कृष्ण प्रेम में पूरित हो जाता था। और उसके मुख से, उस व्यक्ति के मुख से जो दूसरा व्यक्ति हरिनाम का श्रवण करता था, वो भी कृष्ण प्रेम में पूरित हो जाता था। इस प्रकार चारों ओर कृष्ण प्रेम की बाढ़ चैतन्य महाप्रभु ने ला दी। तो ये कृष्ण प्रेम की बाढ़ इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से संभव हुई। तो यही चैतन्य महाप्रभु का विशेष वरदान है, जो नाम के माध्यम से प्रेम प्रदान करते हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का समय आया, तो उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा थी
और फाल्गुन पूर्णिमा में चंद्र उदित होता है, पूर्ण चंद्र। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो चंद्र उदित हो रहे हैं पूर्णिमा के दिन, इस चंद्र में कलंक है। चंद्रमा में कलंक स्वाभाविक है, किंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यदि निष्कलंक गौरचंद्र उदित होने जा रहे हैं, गौरचंद्र निष्कलंक हैं, जब वो उदित होने जा रहे हैं तो इस कलंकित चंद्रमा में क्या लाभ है? ये कलंकित चंद्रमा की क्या आवश्यकता है? इसलिए ये जानकर राहु ने क्या किया, इस कलंकित चंद्रमा को ग्रास कर लिया, अर्थात चंद्रमा का ग्रहण हो गया। जब राहु ग्रास करता है तो चंद्रमा का ग्रहण होता है, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता ग्रहण के समय। तो जब चैतन्य चंद्र उदित होने वाले हैं तो उस समय चंद्र ग्रहण हो गया। और जिस प्रकार ग्रहण के अवसर पर हमारी सनातन संस्कृति में लोग जाकर गंगा में, जमुना में स्नान करते हैं और हरिनाम का कीर्तन करते हैं। तो जब ग्रहण का समय आ गया, पूर्णिमा के दिन संध्या के समय, तो लोग घर से बाहर जाकर गंगा में सब स्नान करने लगे और सभी हरिनाम कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले। तो सभी हरिनाम कर रहे थे, चारों ओर हरिध्वनि सुनाई पड़ रही थी। और इस प्रकार हरिध्वनि के बीच श्री चैतन्य चंद्र सची माता के गर्भ से प्रकट हुए। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, सचिनंदन श्री गौर हरि की। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के बीच प्रकट हुए, चारों ओर हरिनाम चल रहा था, तो इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट से पहले ही भगवान ने हरिनाम प्रारंभ कर दिया ग्रहण के छल से। तो सभी हरिनाम कर रहे थे, यहाँ तक कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मुस्लिम लोग भी हरिनाम कर रहे थे। कैसे? वो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, उपहास करते हुए वो बोलते थे हरि हरि हरि, वो भी हरिनाम कर रहे थे। ये चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का प्रभाव है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए और चारों ओर हरिनाम, लोग गंगा में जा रहे हैं, अजस्र लोग स्नान कर रहे हैं, सभी हरिनाम कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण मायापुर या नवद्वीप के जो लोग हैं वो ये सुन करके कि जगन्नाथ मिश्र का पुत्र उत्पन्न हुआ है, सब आते हैं देखने के लिए। तो ब्राह्मणगण और ब्राह्मण की स्त्रियां तरह तरह के उपहार लेकर थाली में सिंदूर, तेल, हरिद्रा, ये सब लेकर, धान्य, दुर्बा, ये सब लेकर आते हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए। और दूसरे लोग भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे, गौर वर्ण के थे और बहुत सुंदर थे, कृष्ण जैसा सुंदर। केवल वर्ण में भेद था, कृष्ण श्याम वर्ण है, चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण है, नहीं तो पूरी तरह कृष्ण के समान है, कृष्ण ही है। इसलिए जब ये समाचार परिव्याप्त हो गया
कि जगन्नाथ मिश्र का इतना सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है, उनको देखने से कोई व्यक्ति अपने मन को या चक्षु को हटा नहीं सकता, इतने सुंदर हैं। तो लोग आने लगे देखने के लिए, और जगन्नाथ मिश्र के घर में बहुत भीड़ हो गई, लोगों की भीड़, और किसी को ये पता नहीं चला कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसी के बहाने स्वर्ग की देवियां, यहाँ तक कि स्वयं लक्ष्मी देवी, पार्वती, सावित्री, इंद्राणी और ऋषियों की स्त्रियां, ये सभी ब्राह्मणी का वेश धारण करके, ब्राह्मणियों का वेश धारण करके ये लोग भी आई चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। देवता लोग भी मनुष्य रूप धारण करके आए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को पता नहीं है। जगन्नाथ मिश्र के घर में इतनी भीड़ लगी हुई है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को पता नहीं है। और चारों ओर उत्सव मुखर वातावरण है। आकाश में जो गंधर्व किन्नर आदि हैं, ये लोग आकाश में वाद्य बजा रहे हैं, दुंदुभी, और गंधर्वगण नृत्य कर रहे हैं, गंधर्वगण गान कर रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही है। तो आकाश में नृत्य गीत चल रहा है चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण। और नवद्वीप में जितने वाद्य बजाने वाले थे और गाने वाले थे, ये भी आकर पहुंच गए जगन्नाथ मिश्र के घर पर। ये भी जगन्नाथ मिश्र के पुत्र उत्पन्न के अवसर पर ये भी वाद्य के साथ साथ नृत्य और गीत ये सब गाने लगे। तो ये सब उत्सव चल रहा था जगन्नाथ मिश्र के घर पर। तो जगन्नाथ मिश्र आत्मविभोर हो गए थे इस प्रकार पुत्र को देखकर, और इतने सारे लोग आ रहे हैं उनके पुत्र का दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ मिश्र आत्मविभोर हो गए थे और अपना कर्तव्य भूल गए थे। उनको अब पुत्र के जन्म के अवसर पर उनको क्या करना चाहिए। तो उस समय चंद्रशेखर आचार्य और श्रीवास पंडित ये गए थे गंगा में स्नान करने के लिए ग्रहण के अवसर पर। तो ये सुनकर कि जगन्नाथ मिश्र का पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो ये दोनों आए और उनके पुत्र को देखकर तो ये दोनों मोहित हो गए और जगन्नाथ मिश्र को अपने कर्तव्य के बारे में सचेत कराया कि अब आपका पुत्र जन्म हुआ है, अब आपको जात संस्कार आदि कराना चाहिए। क्योंकि जगन्नाथ मिश्र तो विह्वल हो गए थे पुत्र को देखकर। तो इन दोनों ने उनको बताया जात संस्कार आदि करने के लिए। तो उनके अनुसार जगन्नाथ मिश्र ने जात संस्कार कराया और घर में जो भी था और जो दान में मिला था, क्योंकि लोग सब उपहार लेकर आ रहे थे जगन्नाथ मिश्र के घर पर, तो जगन्नाथ मिश्र ने ये सारे उपहारों को और अपने घर में जो धन था ये सभी को ब्राह्मण और जितने भी वाद्यकार, गीत गाने वाले, नृत्य करने वाले और जो भी आए सभी को दान में प्रदान किया। और उनका उद्देश्य था कि इस प्रकार दान प्रदान करने से मेरे पुत्र का मंगल होगा, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। और इधर अद्वैत आचार्य जिनकी पुकार सुनकर भगवान आविर्भूत हुए हैं, तो जब चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए तो उस समय अद्वैत आचार्य शांतिपुर में थे। तो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य को पता चल गया कि अब भगवान का आविर्भाव हो गया। तो अद्वैत आचार्य आनंद में नृत्य करने लगे।
कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। तो हरिदास ठाकुर उनके पास में थे, तो हरिदास ठाकुर समझ में नहीं पा रहे थे कि ये अद्वैत आचार्य अचानक ये नृत्य कीर्तन कैसे आरंभ कर दिए। तो अद्वैत आचार्य को देखकर हरिदास ठाकुर समझ गए कि कुछ न कुछ रहस्य इसके पीछे है। किंतु हरिदास ठाकुर वे भी कीर्तन प्रिय हैं, तो अद्वैत आचार्य के साथ वे भी नृत्य कीर्तन करने लगे और दोनों गए गंगा में स्नान करने के लिए। गंगा में स्नान करने के बाद अद्वैत आचार्य ने ब्राह्मणों को दान में दिया बहुत सारी वस्तुएं। यद्यपि लोग समझ रहे थे कि यह ग्रहण चल रहा है और ग्रहण के समय दान देने की विधि है, इसलिए अद्वैत आचार्य दान दे रहे हैं, किंतु उनका उद्देश्य अलग था, क्योंकि भगवान का आविर्भाव हुआ है, उस उद्देश्य से अद्वैत आचार्य दान दे रहे थे। और सारे संसार में जितने भक्त थे इस ग्रहण के अवसर पर सभी दान दे रहे थे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का उत्सव मनाया जा रहा था नवद्वीप में। तो जब दूसरे दिन मालिनी देवी जो श्रीवास पंडित की पत्नी थी, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आई और दूसरे ब्राह्मणी चंद्रशेखर आचार्य की पत्नी और अन्य ब्राह्मण स्त्रियों के साथ, और श्री चैतन्य महाप्रभु के मस्तक में दुर्बा और चावल देकर उनको सब आशीर्वाद करने लगी। और अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी ये दूसरे दिन अद्वैत आचार्य की आज्ञा लेकर बहुत सारे उपहार लेकर वो आई चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और अद्वैत आचार्य की पत्नी ने जब देखा चैतन्य महाप्रभु को तो इतनी प्रसन्न हो गई और उन्होंने सोचा कि ये शिशु कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण जिस प्रकार सुंदर हैं, ये शिशु उस प्रकार सुंदर है, केवल वर्ण में पार्थक्य है। कृष्ण श्याम वर्ण के, ये गौर वर्ण के। तो अद्वैत आचार्य की पत्नी ने चैतन्य महाप्रभु का नाम, वो इतने आकृष्ट हो गई थी चैतन्य महाप्रभु के प्रति और उनके मन में भय उत्पन्न हुआ कि कहीं डाकिनी योगिनी आदि आकर शिशु पर सवार ना हो जाए, भूत प्रेत सवार ना हो जाए। तो माताएं उस प्रकार करती हैं, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए माताएं शिशुओं का नाम कुछ उस प्रकार देती है जैसे भूत प्रेत आकृष्ट न हो, या उनके माथे पर कोई काला बिंदु आदि देती है। तो ये अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी ये चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत आकृष्ट हुई थी, इसलिए उनके मन में भी भय उत्पन्न हुआ था कहीं डाकिनी योगिनी आदि आकर चैतन्य महाप्रभु सवार न हो जाए, इसलिए उनका नाम उसने निमाई रखा था। तो ये निमाई नाम सीता देवी ने दिया था, अद्वैत आचार्य की पत्नी। और ऐसे भी श्री चैतन्य महाप्रभु नीम के पेड़ के नीचे भी उत्पन्न हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु बचपन में बहुत रोते थे। बच्चे रोते हैं, स्वाभाविक है, किंतु जब कोई चैतन्य महाप्रभु रोते समय जब कोई हरि हरि कहने लगता था तो चैतन्य महाप्रभु का रोना तुरंत बंद हो जाता था। हरि 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 हरि। तो चैतन्य महाप्रभु का रोना बंद हो जाता था और चैतन्य महाप्रभु हंसने लगते थे। तो जब स्त्रियों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जब भी रोते हैं और कोई हरि कहता है तो रोना बंद हो जाता है, तो जब भी वो रोते थे सभी हरि हरि बोलने लगे।
और जब सभी हरि हरि बोलने लगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु का नाम गौर हरि पड़ गया। गौर हरि गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का नाम गौर हरि और निमाई। तो इस प्रकार जब कुछ समय व्यतीत हुआ, एक दिन सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि उनके घर पर किसी शिशु के पदचिन्ह पड़े हुए, और उन पदचिन्हों में भगवान के चरणों में जो चिन्ह होते हैं ये सब दृष्टिगत होते थे। तो जब सच्ची माता ने देखा, जगन्नाथ मिश्र को बुलाया, तो दोनों ने देखा कि ये चरण चिन्ह पड़े हुए हैं घर पर, और उसमें भगवान के चरण चिन्ह है, क्योंकि उसमें शंख चक्र वज्र पताका ये सब चिन्ह है जो भगवान के चरणों में होते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता आश्चर्यचकित हो गए कि ये चरण चिन्ह किसका है, ये कहाँ से आया। और दोनों ने सोचा कि हो सकता है कि हमारे घर में जो शालग्राम के रूप में बाल गोपाल हैं, हो सकता है कि बाल गोपाल हमारे घर में विचरण करते हैं, आना जाना करते हैं, इसलिए उनके चरण चिन्ह पड़े हुए। जब दोनों इस प्रकार विचार कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए थे शैया पर, तो चैतन्य महाप्रभु रोने लगे उस समय। जब ये दोनों इस प्रकार विचार कर रहे थे कि ये बाल गोपाल का चरण चिन्ह हो सकता है, तो जब चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, सच्ची माता दौड़ करके आई चैतन्य महाप्रभु के पास, और जब बच्चे रोते हैं माँ आकर उनको गोद में लेती है, स्वाभाविक है। तो सच्ची माता ने चैतन्य महाप्रभु को अपनी गोद में लेकर उनको स्तनपान कराया, और स्तनपान कराते समय सच्ची माता ने उनके चरण को देखा। तो जब देखा चैतन्य महाप्रभु के चरणों को, तो जो सारे चिन्ह उन्होंने देखा था घर पर पड़े हुए थे, चरण चिन्ह, और चरण चिन्ह में जो चिन्ह थे भगवान के, ये सारे चिन्ह चैतन्य महाप्रभु के चरणों में है। तो सच्ची माता ने जगन्नाथ मिश्र को तुरंत बुलाया, और जब जगन्नाथ मिश्र आए तो सच्ची माता ने जगन्नाथ मिश्र को चैतन्य महाप्रभु के चरण दिखाए। तो जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि भगवान के सारे चिन्ह चैतन्य महाप्रभु शिशु के चरणों में। तो जगन्नाथ मिश्र आश्चर्यचकित हो गए, और तुरंत उन्होंने बुलाया नीलांबर चक्रवर्ती को, अपने ससुर को। नीलांबर चक्रवर्ती आए तो जगन्नाथ मिश्र ने ये बात कही नीलांबर चक्रवर्ती से। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि जब से तुम्हारा ये पुत्र जन्म हुआ है, तभी से हमने गणना करके रख दिया है, ये पुत्र कौन है हम जानते हैं। ये तुम्हारा जो पुत्र है ये महान महापुरुष है, और इसके शरीर में महापुरुष के 32 लक्षण हैं। नीलांबर चक्रवर्ती ने देखकर कहा कि महापुरुष के जो 32 लक्षण होते हैं तुम्हारे इस पुत्र के शरीर में, और महापुरुष के
जो 32 लक्षण है इसमें पंच दीर्घ है, नाक, बाहु, चिबुक, हाँ यदि पंच दीर्घ, पंच सूक्ष्म, सप्त रक्त, षड उन्नत, त्रिहर्ष, त्रिगंभीर, त्रिपृथु। ये सब टाइम लगेगा बताने के लिए डिटेल्स। तो जो भी हो, तो ये महापुरुष के 32 लक्षण है इस पुत्र के शरीर में, और ये सारे जगत का उद्धार करेगा, नीलांबर चक्रवर्ती ने बताया। और तुम अब ब्राह्मणों को बुलाओ, आज हम इसका नामकरण संस्कार कराते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मणों को बुलाया और उसी दिन नीलांबर चक्रवर्ती ने चैतन्य महाप्रभु का नामकरण संस्कार करवाया। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने उनका नाम रखा विश्वरूप, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, सारे विश्व को खिलाते हैं, पोषण करते हैं और पालन भी करते हैं। इसलिए उनका नाम विश्वरूप, क्योंकि भगवान सारे विश्व के पालक और पोषक हैं। और स्वयं भगवान आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो इस प्रकार उनका ये नाम रहा विश्वरूप, सॉरी विश्वम्भर। विश्वरूप उनके बड़े भाई का नाम था। हाँ, तो नीलांबर चक्रवर्ती ने उनका नाम रखा विश्वम्भर। विश्व तो विश्वम्भर जो विश्व का पालन और पोषण करते हैं। तो इस प्रकार जब श्री चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे बड़े हुए, बाल्य लीला कर रहे थे, तो एक बार वो घुटनों के बल पर चलते थे, तो जगन्नाथ मिश्र के आंगन में एक सांप आ गया था और चैतन्य महाप्रभु घुटने के बल पर जाकर उस सांप को उन्होंने पकड़ लिया। तो जब सच्ची माता और दूसरों ने देखा, घर के लोगों ने देखा कि शिशु सांप को पकड़ लिया है शिशु ने, तो ये लोग तो बहुत भयभीत हो गई और उत्कंठा बस सच्ची माता तो बेहोश हो गई कि मेरे पुत्र का अब क्या होगा, सांप डस लेगा। किंतु चैतन्य महाप्रभु सांप के साथ खेल रहे थे, सांप को पकड़ लिया और सांप ने क्या किया, अपने को लपेट लिया, उनके शरीर को, चैतन्य महाप्रभु के शरीर को अपनी पूंछ से लपेट लिया। तो इस दृश्य को देखकर सच्ची माता तो बेहोश हो गई थी। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उस सांप जब लपेट लिया है तो चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर सो गए, जैसे अनंत शयन कर रहे हैं। तो कुछ समय के बाद वो सर्व फिर अपने आप चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर चला गया। तो अब श्री चैतन्य महाप्रभु बाल्य लीला कर रहे थे, और हम लोग जानते हैं कि बच्चे मिट्टी खाते हैं, भगवान कृष्ण भी खाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार मिट्टी खाई और वस्तुतः सच्ची माता ने उनको दिया था खई और संदेश खाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु खई और संदेश खाने के बदले उसको रख करके वो मिट्टी खाने लगे। तो सच्ची माता जब सच्ची माता ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु खई संदेश खाने के स्थान पर मिट्टी खा रहे हैं, तो तुरंत आकर उनको उनके मुख से मिट्टी निकाल लिया
और उनको डांटने लगी कि क्यों मिट्टी खा रहे हो, मैंने तो खाई संदेश दिया था खाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, खाई संदेश और मिट्टी में क्या अंतर है, दोनों तो मिट्टी है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि खाई संदेश मिट्टी है और मिट्टी तो मिट्टी है। तो सच्ची माता अपने पुत्र के मुख से ये सुनकर, ये दर्शन, तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये छोटा सा बच्चा है, इसको इस दर्शन किसने सिखाया। तो सच्ची माता ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि तुम्हें ये बात किसने सिखाई कि खाई संदेश मिट्टी है और ये मिट्टी मिट्टी है, इसलिए तुम खाई संदेश छोड़ करके मिट्टी खा रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वस्तुतः ये सब मिट्टी का ही रूपांतरण है। वो अपना दर्शन बताने लगे कि ये मिट्टी का ही रूपांतरण है। तो सच्ची माता ने कहा कि जब कोई अन्न खाता है, तुम अन्न खाओगे उससे शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, और तुम मिट्टी खाओगे शरीर रोगग्रस्त होगा। जिस प्रकार कोई मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी के बर्तन में हम पानी को रख सकते हैं, किंतु अगर मिट्टी ऐसे कच्चा है, उसमें हम पानी डालें तो वो पानी सोख लेता है। यद्यपि मिट्टी का बर्तन और मिट्टी दोनों मिट्टी है, अन्न मिट्टी की उपज है, तो अन्न खाने से शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, मिट्टी खाने से शरीर रोगग्रस्त होता है। उसी प्रकार ये मिट्टी का बर्तन पानी को रख सकता है और कच्ची मिट्टी जो है ये सोख लेती है। तो इसमें अंतर है। तुम जो कह रहे हो कि दोनों मिट्टी है, तो इसमें अंतर है, माता ने सिखाया चैतन्य महाप्रभु। जब सच्ची माता ने इस प्रकार कहा तो चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता से कह रहे हैं कि माता, तुम यदि इस प्रकार जानती हो तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया इस बात को। तो अब हम जान गए तुमसे, अब हम मिट्टी नहीं खाएंगे, और जब हमें भूख लगेगी तब हम तुम्हारा स्तनपान करेंगे। तो इस प्रकार कहकर चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता की गोद में चले गए और सच्ची माता ने उनको अपना स्तनपान कराया। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी बाल लीला हैं और हमारे पास समय का प्रतिबंध है, तो इसलिए हम यहीं, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है और इसको समाप्त करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं अनंत देव भी हजारों मुख से भगवान के गुणगान कर रहे हैं, लीलागान कर रहे हैं, अभी तक समाप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम यहीं विश्राम देते हैं भगवान की कथा को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री श्री जगन्नाथ मिश्र की जय, श्री सच्ची माता की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।